Okay, so kids, let's start. Today we will do logarithmic functions and exponential functions. And आगे और भी होगा तो और भी करेंगे obviously. देखते कितना आगे बढ़ सकते हैं आज. चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है. चलो. Can I start? Yes, sir. Okay, ठीक है kids. So before I just speak about these formulas, I just want to give a recap of the graph that we have done. Let's see the graph of a raised to x. I think everybody should know a raised to x का graph. जो exponential functions होते हैं basically ऐसे होते हैं, या तो कुछ कोई ऐसा होता है या तो कुछ functions ऐसे होते हैं. This is a graph. They both are the graph of a raised to x only, by the way. But हाँ, condition याद है किसी को? This is the graph when a base is between what? Base is greater than 1. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So this is the graph when the base is greater than 1, and this is the graph when the base is between 0 to 1. 0 to 1. ये हमें actually पता होना चाहिए. Is it okay? And base कभी 1 नहीं हो सकता. Remember, अगर 1 होगा तो constant function बन जाएगा. ये exponential function नहीं रहेगा अगर आपका base 1 हो गया. Is it okay? Yes, sir. उसके बाद तो ये आपका हो गया दो फंक्शन. सिमिलरली हमको log x का फंक्शन भी पता होना चाहिए. log of x to the base a का फंक्शन पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए. एंड हाउ डज इट लुक लाइक? लेट्स सी. इसमें भी हम दो ग्राफ देखेंगे. एक ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये आपका 1 है, और एक ग्राफ कुछ ऐसा होता है. This is the graph when the base is between what to what? The base is what? Here the base is greater than 1. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. And here the base is between what to what? 0 to 1. 0 to 1. So remember, when the base is more than 1, it's an increasing function. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. है ना दोनों. And when the base is between 0 to 1, it's a decreasing function. Is it okay? Yes, sir. So keeping this thing in mind, let's go back to few results. देख लेते फटाफट. Remember few results, kids. If x2 is greater than x1, then a raised to x2 will be greater than a raised to x1. If a is greater than 1, तो अगर increasing अगर a greater than 1 होगा तो increasing function हो जाएगा, तो inequality will not change. But if a is between 0 to 1, then inequality will change. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So if x2 is greater than x1, then a raised to x2 will be greater than a raised to x1. If a is greater than 1, and if a is between 0 to 1, then a raised to x2 is less than a raised to x1. Is it okay? Yes, sir. Now, if Yes, a is greater than 1, अगर a 1 से बड़ा है तो increasing function ही होगा. And by the way, सबको शायद पता ही है, logarithmic to exponential form, log of x to the base a is equal to b, then x can be written as a raised to b. Is it okay? Yes, sir. Yes, है ना? sir. लेकिन अगर inequality होगा, अगर आपका base 1 से बड़ा है तो x will be, I can write greater than a raised to 0. Is it okay? Yes, sir. And a raised to 0 क्या होता है? 1 ही होता है. Is it okay? Yes, sir. Okay, यहाँ पर भी वैसे ही देख. लेकिन अगर a 1 से बड़ा तो वैसे ही होगा, तो your x will be less than a raised to 0. a raised to 0 is 1. तो x is less than 1. But less than 1 बोला, लेकिन ये जो value है ना, will be limited to 0 only. हाँ के नहीं? Yes, sir. Because log of 0 is not defined. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. और नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा. दैट्स व्हाई x लेस देन a रेज टू 0, बट यहां पर लेस देन 0 लिखना पड़ेगा. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Similarly, now this is 0 less than a less than 1. This is a decreasing function. That's why when log of x to the base is greater than 0, तो यहां पर आएगा x will be less than a raised to 0. So x will be less than 1 and less than 0. Is it okay? Inequality has to change. Yes, sir. Yes, sir. And यहाँ पर x will be greater than a raised to 0. So x has to be greater than 1. चलेगा? Yes, sir. Good. Similarly, x2 is greater than x1.
a is greater than 1, so it's an increasing function. So log x will be increasing, so I can apply log straight away and the inequality will not change. Is it okay? Yes, sir. But अगर 0 और 1 के बीच में the inequality has to change. Does that make sense? Yes, sir. Similarly, log of x2 to the base is greater than x1. So x2 has to be greater than a raised to x1. Is it okay? If a is greater than 1, is it okay? Bolo. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. But if it is between 0 to 1, then x2 will be less than a raised to x1. And of course, x2 का minimum value तो 0 ही होगा ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे जो रिजल्ट्स हमको काम आने वाले हैं आगे के प्रॉब्लम्स में. तो शुरुआत करते हैं. So can you go on the graph? Yeah, one sir. Can you go on the graph वाला sheet? Yeah. Yes, sir. Done. Okay, let's start with the domain problems again. Function में काफी सारा डोमेन वाला प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एग्जाम में, तो पता होना चाहिए. डोमेन का मतलब होता है हमें x का वैल्यू ढूंढना है. तो रूट के अंदर जो टर्म होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता. डू यू एग्री? Yes, sir. So 1 minus 5 raised to x upon 7 raised to minus x minus 7 has to be greater than or equal to 0. Does that make sense? Yes, sir. पक्का ना? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. So I can say 5 raised to x minus 1 upon 7 raised to minus x minus 7 will be less than or equal to 0 because मैंने उसको उल्टा लिख दिया है. Is it okay? Yes. Okay, अभी ये VV को बनाएंगे पर थोड़ा ध्यान से करेंगे. Equal to 0 करेंगे, equal to 0 करेंगे. Okay? Okay, तो कैसे करते हैं? Equal to 0 Yes, का यहाँ sir. पर आएगा 5 raised to x minus 1 equal to 0. तो आपके यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0. चलेगा? अरे चलेगा क्या? दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा जब ये बंदा 0 होता है. So I'll get 7 raised to minus x is equal to 7. तो आपको x यहाँ से क्या मिल रहा है? x will be minus 1. Is it okay? Yes, sir. Cool. Now once this is done, now let's do the Vedi curve. 0. This will be minus 1. Of course, kids, अभी नॉर्मली हम हमेशा ऊपर से शुरू करते हैं लेकिन थोड़ा बच के करो इस बार. रैंडमली कोई एक वैल्यू लेते हैं. Let's take 1. 5 raised to 1 will be 5 minus 1. That is positive value. 7 raised to minus 1 will be 1 by 7. Now 1 by 7 minus 7 is a negative value. So positive upon negative will be negative. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. ये नीचे से शुरू होगा फिर वो Yes, zigzag sir. ही रहेगा. Is it okay? Yes. Okay, हम नेगेटिव Yes, sir. ढूंढ रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Cool. तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो है ये वाला पार्ट. The answer is x belongs to minus infinity to minus 1. Now minus 1 आएगा कि नहीं आएगा? And 0 to infinity. Can minus 1 come? No. No, sir. Denominator will Denominator will become become 0. It Yes. will not come. Yeah. Can 0 come? Can 0 come? Yeah. 0 can come. Yeah. 0 चलेगा ना? Yes. Yes, sir. So 0 can come. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. a nice problem we solved it. Next one. Domain of the function. ये question IIT JEE 2000 में आया है. Okay. ये शुरू करते हैं. Domain of the function f of x is given by some relation. So they've given some relation to us. और उन्होंने हमें डोमेन पूछा है. See, डोमेन पूछने का मतलब होता है हमें x के सारे परमिसिबल वैल्यूज पता करने हैं. Is it okay? Yes. So let's do one thing. I'll write 2 raised to y is equal to 2 minus 2 raised to x. Is it okay? Yes, sir. Now let's start observing. Let's observe the things properly. You all will agree that left hand side will always be greater than 0. Do you agree? Exponential value हमेशा positive ही होता है. Do you agree? Yes, sir. पक्का ना? Yes. अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा तो राइट साइड को भी क्या Positive. Positive होना. पॉजिटिव होना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. जिसका मतलब मुझे यहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग 2 minus 2 raised to x has to be greater than 0. Is that true? Yes, sir.
Yes, sir. 2 greater than 2 raised to x. Is that true? Or is Yes. that true? Yes, sir. So 2 raised to 1 is greater than 2 raised to x. Now, of course, the base is greater than 1. Huh? The base is greater than 1. The inequality will not change. Do you agree? Yes, Yes. sir. So your x is less than 1. And of course, less than कितना होगा? Till negative infinity. Is it okay? Yes, sir. तो check your answer. तो ये आपका आंसर है. तो check कर लो आपका आंसर क्या है. Answer will be option D. D. Is it okay? ठीक है ना? अरे ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. हाँ, sir. वापस से हमें यहाँ पर डोमेन ही ढूंढना है. ओके, डोमेन ढूंढना है तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा log of this. Log is different only for positive values. Is it true? Yes, sir. तो यहां पर आपका जो sin x है, जो sin x आपको जो दिख रहा है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा. इज दैट ट्रू? Yes. पक्का ना? Sir. ओके. हाँ. अगर पॉजिटिव होना पड़ेगा तो अगर हम थोड़ा सोच लें तो sin x पॉजिटिव कहां पर है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. तो कैन आई से x का जो वैल्यू 0 और पाई के बीच में ही होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. लेकिन उसको जनरलाइज करना पड़ेगा. तो कैन आई जनरलाइज दिस? Add 2 and pi. एड 2n पाई ना, बिकॉज उसका पीरियड है 2n पाई. हाँ कि नहीं? Yes. Yes. Add 2n Yes, sir. pi, so 2n pi, and this also 2n pi plus pi. Plus one. Is it okay? Yes. Added 2n pi. ठीक है ना? Yes, sir. So is pi included? क्या हुआ? Like the Pi I will not include ना, because if pi if I include, then this will become okay. 0 ना. ठीक है ना? yes, Yeah, understood. Yes, sir. yes. चलो अच्छी बात है. Again, this is true when this term should be what? Greater than 0. Does it make sense? Yes, sir. Yes, sir. And I think we can draw the Wavy curve, right, kids? Yes, sir. I think we know the answer, right? तो इसका आंसर क्या होगा? X belongs to what? Minus infinity to 2 union 3 to infinity, है ना? Positive part. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Good. Come to 127. रूट के अंदर जो टर्म होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. डू यू एग्री? Yes, sir. So log of sin x to the base 3 should be greater than or equal to 0. Is it okay? Is it Yes, okay? sir. Base 3 है तो increasing ही है log x, तो inequality will not change. Is that okay? Yes, sir. तो आपका sin x हो गया greater than or equal to 1, लेकिन sin x 1 से तो बड़ा होता ही नहीं है, जिसका मतलब है आपके sin x का वैल्यू फिर क्या होना चाहिए? 1. Equal to 1. Is that true? Yes. Yes, sir. और अगर sin x equal to 1 है तो आपका x का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 2 है ना? Yes, sir. Can I generalize it? 2 and pi plus pi by 2. हाँ, वेरी नाइस. तो आपका जो x होगा फाइनली वो होगा 2n pi plus pi by 2 where n belongs to integer. Yeah. ठीक है ना? Yes. Yes. ओके. अगेन साइन इनवर्स के अंदर जो उसका जो बंदा होता है उसका हमेशा वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है. डू यू एग्री? Yes, sir. देखो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर इनवर्स से लेकर ट्रिगो से लेकर इनइक्वेशंस क्वाड्रेटिक कितना ज्यादा यूज हो रहा है. ओके, तो ये काइंड ऑफ आपका रिवीजन ही हो जाता है. ओके, इस सारे चैप्टर्स का. तो प्लीज आप लेक्चर्स मेरे मिस मत करना. -1 to 1. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हो गया 9 raised to -1 और इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा क्योंकि बेस 9 है ना. सॉरी आई हैव टू रिमूव दैट लॉग है ना. तो आपका यहाँ पर आएगा x² by 4 less than equal to 9 raised to 1. Is it okay?
Yes, sir. ये 4 यहाँ पर आएगा, becomes 4/9 less than equal to x square less than equal to 36. Is it okay? Yes, sir. आपको अभी आंसर याद होना चाहिए. क्या है रिजल्ट वो? If x square is between a square to b square, तो आपका x का वैल्यू क्या होगा? x belongs to minus b minus A. minus a union a to b. Is that true? Yes, sir. Your x belongs to, आंसर आएगा -6 to -2/3 union 2/3 comma 6. Is it okay kids? ठीक है ना? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Okay, again the logic remains the same, but इस बार base मस्त interesting है. Base कुछ और है. So this is true when log of x minus 1 upon x plus 5 to the base 0.4 will be greater than or equal to 0. Is it okay? Yes, sir. इस Yes, बार sir. क्या होगा? इस बार ना आपका inequality चेंज हो जाएगा. यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, लेकिन और एक बात भी भूलना नहीं है. इट शुड बी ग्रेटर देन 0. इज दैट ट्रू? हाँ, sir. पक्का Yes. ना? पक्का ना? Yes, sir. तो हमें ये भूलना नहीं. ओके, अब इसको सॉल्व करने का ना 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट विल बी x minus 1 upon x plus 5 greater than 0 एंड दूसरा विल बी x minus 1 upon x plus 5 less than or equal to 1. देखो यहाँ तो हम वेवी कव कर ही सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा 1 and -5. ओके, तो इस यहाँ से जो मुझे आंसर जो मिलेगा वो है x belongs to -infinity to -5 union 1 to infinity. Is it okay kids? Yes, sir. लेकिन जहां तक यहाँ का सवाल है, देखो एंड है, हमें दोनों से आंसर फाइंड करके दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. इज इट ओके? Yes. ओके, नाउ टू सॉल्व दिस पार्ट आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते. मैंने आपको सिखाया होगा. यू कैन नॉट शिफ्ट दिस गाय है बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट एक्स. हाँ कि नहीं? तो ये बंदा Yes, पॉजिटिव yes, है या sir. नेगेटिव है, वी डोंट नो. एंड सिंस वी डोंट नो वी कैन नॉट शिफ्ट. So what I'll do is I'll shift that 1 here. So I get x minus 1 minus x minus 5 upon x plus 5 less than or equal to 0. आपका ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या यहाँ से मिलेगा? -6 upon x plus 5 less than or equal to 0. ये बहुत ही क्लियर बात है किड्स. अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव है, ऑलरेडी ऊपर वाला नेगेटिव है, तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा. इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये पूरा नेगेटिव है और ऑलरेडी ऊपर वाला नेगेटिव, तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा, which means your x plus 5 should be greater than 0. Does that make sense? Yes. Yes. So I get x is greater than -5. So I get value from here x belongs to -5 to infinity. Is it okay? Yes, sir. हाँ, अब करना what you have to do is you have to find दोनों का common solution. दोनों का common solution, intersection. So what is the final answer? 1 to infinity. 1 to infinity is the answer. हाँ कि नहीं? Common. Yes, sir. So I get the domain here. So your domain will be 1 to infinity. Does that make sense? Yes, sir. Okay. Similarly, I think ये भी बहुत मस्त प्रॉब्लम है. रूट के अंदर जो टर्म होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होगा. Do you agree? Yes. Yes, So sir. again, it is but obvious for me to say that log of x minus 1 to the base 2 minus x should be greater than or equal to 0. Is it okay? Yes, sir. sir. Now the problem is, I will have to break this problem into 2 parts. Why 2 parts? One where the Because base we is don't know the lesser than value. one where it is Yes, greater. sir. Actually, in first case, your base I'll take is greater than 1. And in the second case, I'll take the base between 0 and 1. So ये दोनों चीजें करेंगे. ठीक है, मतलब यहाँ से आपको जो मिल रहा है वो है 2 minus 1 greater than x. तो यहाँ से जो मेरा एक प्राइमरी कंडीशन वो है कि मेरा x का वैल्यू 1 से तो कम होना ही चाहिए, जो भी आंसर आएगा यहाँ से. हाँ कि नहीं? सॉल्व करने के बाद. Yes, sir. Similarly, I'll subtract by -2, so I get -2 less than -x less than. Subtracting by -2, I get -1. I multiply by -sign, so inequality should change. Sign. So 2 greater than x greater than 1.
तो यहां से जो मुझे मिल रहा है वो x किसके बीच में होना चाहिए मेरा 1 and 2 के बीच में. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. Now let's start with the work. Now यहाँ पर base आपका 1 से बड़ा है, so I'll get from here x minus 1 will be greater than or equal to 2 minus x whole raised to 0 and the inequality will not change. Is that true? Yes. Yes, sir. So I get x minus 1 should be getting equal to 1. So x should be greater than or equal to 2 and this cannot be my answer. हाँ क्या नहीं? Because मेरा primary condition ये है, हाँ क्या नहीं? Yes. जो भी आंसर यहाँ से आएगा वो 1 से कम होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, हाँ कि नहीं? Yes, sir. पर मैं अभी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो डिस्कार्ड कर दिया. अब इसकी बात करते हैं. यहाँ पर आएगा x minus 1 लेस देन और इक्वल टू 2 minus x होल रेज टू 0 जबकि इसका मिनिमम वैल्यू शुड बी 0 से ज्यादा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So I get 0 less than x minus 1 less than equal to 1. So I'll add 1 throughout 1 less than x less than or equal to 2. Is it okay? 2. Yes, sir. So what is the answer I'm getting from here? 1 to 2 open interval, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. मेरा जो भी आंसर हो इसके अंदर ही होना चाहिए, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली आंसर क्या है यहाँ से? x is between 1 to 2 only, हाँ क्या नहीं? जो Yes, भी sir. वैल्यू हो वो इसके अंदर होनी चाहिए. Is it okay? Yes, Yes, sir. sir. Okay, cool, very good. You know, कोई बच्चा ना बैठ के काउंट करना चाहिए कितनी बार ये सब लोगों ने बोला है. बट क्या करे यार, है ना, करना पड़ता है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. बिल्कुल सर. Yes, sir. Cool. Yes, sir. सर्वेश आज मम्मी को बोलना रिकॉर्डिंग दिखा के देखो मैंने कितनी बार यस सर बोला, मैंने ध्यान दिया था क्लास में, हाँ कि नहीं सर्वेश? नहीं सर, ऐसे चलो ठीक है, शुरुआत करें. अरे शुरुआत करें क्या? ओके. Yes, sir. दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड व्हेन दिस टर्म दैट इज लॉग के अंदर जो टर्म बैठा है ये पॉजिटिव होना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ठीक है, एक काम करते हैं. 18x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 77 है एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. इज इट ओके? Yes, sir. आपका बेस तो 5 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन 5 raised to 0. इज इट ओके? Yes, sir. अच्छी बात है. ऑफ कोर्स इतना होने के बाद ये आपका 1 हो गया. अगेन I can write this as 18 minus x square minus 77 will be greater than 3 raised to 1. That is 3. Is it okay? Yes, Yes, sir. Yes, So if sir. I just switch all the terms, I'll get x square minus 18x plus 80 less than 0. Is it okay? Yes, sir. So of course I'll get from here x minus 10 into x minus 8 less than 0. Does that make sense? Yes, तो sir. ये 10 आपका है, ये आपका 8 है और अभी सीधा zigzag ही करना है आपको. तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नेगेटिव पार्ट, तो आपको जो x से बिटवीन व्हाट टू व्हाट होना चाहिए 8 to 10. 8 to 10. Is it okay? Yes, sir. अभी इतना करने के बाद तो यार कर सकते हैं अभी. चलो अगेन रेंज पूछा है. ओहो रेंज पूछा है. ठीक है, अच्छी बात है. तो रेंज मतलब हमको y का वैल्यू पता करना, हमको इसका वैल्यू पता करना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. शुरुआत कैसे करें? शुरुआत है आपका जो sin x का वैल्यू जो होगा शुड बी ग्रेटर देन 0, बट sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है. डू यू एग्री? Yes, sir. Okay, now if I apply log to the base 2, if I apply log to the base 2 everywhere, base 2 है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, आके नहीं? इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं. डू यू एग्री? Yes, sir. गुड. log of 0 will be negative infinity. देख लो ग्राफ ऐसा होता है, आके नहीं? log of x to the base है, आके नहीं? for a greater than 1. is it okay? और अगर 0 की तरफ जाते तो ग्राफ नीचे जाता है ना, Yes. Yes, sir. तो कैन से नेगेटिव इंफिनिटी. इज दैट ट्रू? Yes, sir. So the log of 0
अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो it will be negative infinity. Does that make sense? Yes. Yes, sir. Of course, this is f of x and log of 1 is 0. Is it okay? Yes, sir. तो finally range क्या मिला है? I've got the answer as minus. Oh, log of 1 is 0. Sorry. Log of 1 is 0. Minus infinity to 0. 0 is included. Is it okay? Yes. चलो अच्छी बात है और आगे बढ़ेंगे. ओके यहाँ पर भी एक्चुअली आपको रेंज ही फाइंड करना है. वी टू फाइंड द रेंज ओनली. तो आई थिंक शुरुआत करते हैं. ओके सबसे पहले अंदर का जो टर्म है उसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक जाएगा. इज दैट ट्रू? Yes. अच्छी बात है ना. पैराबोला है हाँ के नहीं? Yes. इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है आगे मैं लॉग अप्लाई कर दूंगा सब साइड पे. ऑफ कोर्स बेस 3 है तो इनइक्वालिटी मेरा तो बदलने वाला है नहीं तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. इज दैट ट्रू? Yes. Yes, sir. या अगेन वापस से देख लो ग्राफ वही ग्राफ है. अगर 0 की तरफ जाएगा तो आंसर है नेगेटिव इन्फिनिटी. इज दैट ट्रू? Yes. और अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो आंसर भी इन्फिनिटी होता है. यहाँ के नहीं? Yes. सो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आपका रेंज क्या हो गया? Minus infinity to infinity. I can say all real numbers. Is it okay? Yes. Yes, sir. Good. Again, सबसे पहली बात ये जो टर्म है कौन सा क्वेश्चन इसमें क्या वापस क्या पूछा? इसमें रेंज ही पूछा उन्होंने वापस से. तो ये जो रूट है ये जो टर्म आपको जो दिख रहा है इसका मिनिमम वैल्यू विल बी 0 लेकिन 0 से ज्यादा होना चाहिए. इज दैट ट्रू? Yes. Yes, sir. और मैक्स वैल्यू क्या हो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है. डू यू एग्री? Yes. अगर आप x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा. इज दैट ट्रू? Yes. Yes, sir. सो नाउ इस बार बेस आपका क्या है? 0.3. So equality will. So log of under root of x square minus 16 to the base 0.3. Log of infinity to the base 0.3. Now let's look at the graph of this. अब इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा होगा. Is that true? Yes, sir. तो जब x 0 की तरफ जाएगा then this will be nothing but positive infinity. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन x जब infinity की तरफ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव infinity की तरफ. Is that true? Yes, sir. तो यहाँ पर भी आपको f of x सारे रियल नंबर्स ही मिलेंगे. Does that make sense? Yes, sir. sir. So again यहाँ पर आपका जो रेंज हो जाएगा वो है all real numbers. Is it okay? Yes. Again ये इंटरेस्टिंग है. ये मस्त है. ओके यहाँ पर ये जो अंडर रूट ऑफ 64 माइनस एक्स स्क्वायर इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. मैक्स वैल्यू क्या है? 8 है ना? Yes, अगर sir. आपको Yes, समझना sir. अगर आपको नहीं समझता तो इतना तो लोगों को समझना ही चाहिए. एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है. इज दैट ट्रू? Yes, sir. So minus x square will be less than or equal to 0. Is that true? Yes, sir. You add 64 throughout. Is that okay? Yes. Now if I take a square root, so what is the max value will be 8. Is it okay? और ये तो रूट क्या log of 0 तो 0 किससे ज्यादा ही होना चाहिए. यहाँ के नहीं इक्वल तो नहीं आएगा क्योंकि अगर इक्वल टू 0 तो log of 0 is not defined. यहाँ के नहीं. Yes. Now apply log throughout. Base 2 है तो inequality will not change. Is it okay? I'll write f of x. चलेगा ना? अरे चलेगा क्या? I wrote f of x है ना log of this. अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है यार. कैसे लोग हैं यार? Yes. Yes. बोलेगा तो फिर मैं ना खामखा मुझे एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ता है फिर. Again log of 0 will be negative infinity. This is your f of x and this will be nothing but 3. Is it okay? Yes, sir. So finally your range will be a negative infinity to 3 and 3 should be included. Does that make sense? Yes, sir. Cool. आगे बढ़ते हैं.
अगेन यहाँ पर भी आपको रेंज ही फाइंड करना है, तो हमें तो इतना पता ही होना चाहिए log of x to the base 2 जो है log of this है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 से शुरू होगा, लेकिन कहाँ तक जा सकता है वो, इंफिनिटी तक जा सकता है. Infinity Is that true? Yes, sir. So if I just apply to the base 2, if I just apply to the base 2, inequality will not change. Is it okay? Yes. This will be negative infinity and this will be positive infinity. Is it okay? ठीक है ना? Yes, sir. Okay, so I think I hope सबको log वाले सम समझ गए सारे? समझ गए ना? अरे बोलो ना. Yes, sir. या ओके, अभी हम आगे बात करेंगे कुछ अलग स्पेशल कैटेगरी फंक्शंस के. पहला हम देखेंगे स्टेप फंक्शन. ये सब तो सिखाया ना मैंने, स्टेप फंक्शन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. ओके, जो फ्रैक्शन, जो स्टेप फंक्शन होता है वहां पर x कैन बी एनीथिंग. डू यू एग्री? Yes. लेकिन जो उसका जो रेंज होता है, रेंज इज ऑल इंटीजर्स. डू यू एग्री? Yes. Because step function always splits an integer. Does that make sense? हाँ क्या नहीं? So this is a greatest integer function. मतलब क्या? It fetches an integer which is greater than or which is less than or equal to that number. Is that true? Yes. So step of 3.98 will be 3 only, है ना? Yes. Step of minus 2.3 will be less than the number, so it has to be minus 3. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. But step of integer is always an integer. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिखाया है तो हमें याद ही होना चाहिए. और बाय द वे हमें इसका ग्राफ भी पता है. पता है कि नहीं पता है ग्राफ इसका? स्टेप पता है, हाँ फंक्शन. सर. यस सर, पता है. ओके, -3 to -2 में -3 होगा, -2 to -1 में -2 होगा. तो ये सारे चीजें हमने काफी की है, तो ये एक्सपेक्ट करता हम सबको पता होना चाहिए. फिर भी कोई भूल गया तो मुझे बोल देना, मैं आपको क्लास 11 का फंक्शन का वीडियो दे दूंगा मैं, बट आई थिंक आता ही होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके बारे में. Sir, क्या? sir, could you move on to the last slide, please? Yes, sir. So, one second. Yeah. Done, sir. ये भी ठीक है ना? हाँ सर. चलो ठीक है. ओके, चलो अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे दोगे. चलो टेल मी, इफ स्टेप ऑफ x इज 1, देन व्हाट इज x इज बिटवीन what to what? What is x का आंसर? 1 greater or equal to x greater. 1, but it should be less than 2. हाँ क्या नहीं? Exceeding 2. यस सर. है ना? 1 will be included till 2. तो 1 and 2 के पीछे जो भी वैल्यू होगा आंसर नहीं आएगा. हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? Yes. इसका आंसर क्या होगा? 3 to 4 excluding 4. इंक्लूडिंग 3 बट एक्सक्लूडिंग 4. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. यस सर. इसका आंसर फिर क्या होगा? -2 to 3. -2 to -3. -2 to 3. Minus 3 not included. -3 open interval. -1 to -2, -2 Sir, per -2 interval. to Sir, -1. -2 to 1 3. is not 3 included. include नहीं होगा. अरे -2 आएगा. -2 से क्या? Minus Minus one. one. -1 not Not included. अरे लोग कैसा पाप लगेगा, ऐसा मत करो. इफ आई से x इज, आपका सपोज आई टेल यू स्टेप ऑफ 1.3, उसका आंसर हम क्या लिखते हैं? -2. -2 ही लिखते हैं ना? -2. अरे हाँ क्या नहीं? यस सर. तो -2 आंसर कब होगा? जब आपका आंसर किसके बीच में होना चाहिए? -2 और -1 के बीच में. हाँ क्या नहीं? यस Yes, sir. है ना? -1.7 भी -2 ही होगा. इज इट ओके? यस सर. तो -2 to -1. अब बताओ इसका आंसर क्या है? All positive Fraction. integers except 1. फ्रैक्शनल स्टेप फंक्शन greater equal to 2. व्हाट इज x का वैल्यू? 2 to infinity including 2. हाँ, 2 to infinity ना? चैत्य शाह, Yes, sir, I got it. है ना? Step of 2 is 2. Step of 2.1 is 2. Step of 2.3 is 2. Step of 3 will be 3. Step of 4 will be 4. तो हमें तो स्टेप क्या चाहिए? 2 या उससे ज्यादा चाहिए. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. यस सर. तो आपका x का वैल्यू या तो 2 होगा या उससे ज्यादा होगा, तब जाके हमेशा आपका स्टेप x का वैल्यू 2 या उससे ज्यादा ही रहने वाला है. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ये सर आपको- सर इंफिनिटी इंक्लूड होना चाहिए ना. अरे इन्फिनिटी रियल नंबर है क्या? फटका खाएगा क्या? अरे सर्वे नहीं नहीं. हाँ फटका चाहिए तेरे को? नहीं. हाँ. Okay, so kids,
स्टेप ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 और स्टेप ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। तो पहले इसका आंसर मुझको दे दो। 3 to infinity. 3 to infinity, including to now. infinity. हाँ, Including 3. 3 to infinity 4 to infinity, sir. 4 to 4 to infinity रे बाबा। स्टेप ऑफ x अगर 3 से बड़ा है और ये जो बंदा स्टेप x है वो हमेशा मुझे इंटीजर ही देता है, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो वो जो है वैल्यू एक्चुअली इसका वैल्यू 4 से शुरू होगा, हाँ के नहीं? Yes, sir. हाँ, sir. असल में दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन, हाँ के नहीं? So Yes. for both is the same only. हाँ, वही तो बताना चाहता हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन इट इज एक्चुअली सेम एज दिस क्वेश्चन, हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, That's sir. all. Yes, और sir. इसका आंसर क्या है बताओ? 4 to infinity. x इज व्हाट? Square bracket 4 to infinity. 4 या उससे ज्यादा, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, दिस sir. क्वेश्चन सेम एज दिस क्वेश्चन, इज इट ओके? So, sir, first part में like will 4 be included or like? इन दिस पार्ट यू सेइंग? Yes, sir. Okay, first of all, Rajveer, step of x is greater than 3, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So step of x always gives an integer only, ना? Yes. तो अगर किसी ने बोला 3 से ज्यादा है तो कहाँ से शुरू होगा? It's like 3.1 or 3.2, right? How can it be 3.1? No, like x. I'm talking about value of x. But if x is 3.2, the answer will be x. If x is 3.2, the step x will be 3, na? Yes, sir. But 3 is not possible, na? तो क्या करूं मैं? I think he has not understood. I understood this, sir. I was just asking like, will we exclude or included for like? अरे 4 तो will come only ना? ए राजवीर देख, तेरे को मैं समझाता, तेरे को नहीं समझा, नहीं तो तू सवाल ही नहीं पूछता मेरे को। राजवीर, अगर मैं तुझे बोलता हूं ये जो बंदा ऐसा है, तो सबसे पहला सवाल आप मुझे पूछोगे ये तो बकवास चीज बोल रहा है, स्टेप ऑफ एक्स तो इंटीजर ही होता है, तो 3 तो होने वाला है नहीं। तो इट एक्चुअली मींस स्टेप ऑफ एक्स क्वेश्चन असल में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इज इट ओके? क्योंकि स्टेप Yes, sir. Yes, sir. Understood. हाँ के नहीं? Yes, sir. Understood. इट मींस आपका फिर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? एक्स का वैल्यू 4 होगा या उससे ज्यादा होगा? Yes, sir. अंडरस्टूड ना? Yes, sir. So these are not two different questions, the same question. So I've just written in this format now. Is it okay? Yes, sir. Yeah. 142. Chalo, tell me. 142. X is less than 4. Minus infinity to? 4 not included. Very good. देखो, किसी ने आपको बोला स्टेप ऑफ 3.2, तो आप आंसर क्या बोलते हो? 3. 3.4, तो आप आंसर क्या बोलते हो? 3, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? और एक बात मैं बता रहा था यहाँ पर, सो 3.3 सब बोला तो आंसर क्या होगा? 3, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. 3.98 होगा तो आंसर क्या होगा? 3. पक्का? Yes, sir. हाँ, तो sir. आपका जो x का वैल्यू होगा, ऑफ कोर्स x का वैल्यू उन्होंने स्टेप x लेस देन इक्वल 3 बोला है, तो तो नेगेटिव x तो नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट कहाँ तक रहेगा? Limit Excluding x क्योंकि x 3.98 भी हो सकता है ना? Yes, sir. 3.98 भी हो सकता है, 3.99 भी हो सकता है, तो असल में ये 4 तक जाएगा, हाँ क्या नहीं? extending to 4. Yes, sir. But your x cannot be 4, हाँ क्या नहीं? Cannot be, sir. So is this convincing now? Yes. क्योंकि अगर x 4 होता तो स्टेप ऑफ 4 4 हो जाएगा। डू यू एग्री? हाँ, Yes. sir. अच्छी बात। Okay, 143. Don't you think this is same as this, Rajveer? Yes, sir. It is. Step of x less than -1. So step of x should actually be what? Less than or equal to -2, हाँ क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? Minus infinity to Minus infinity to included. minus 2 included. Tell me, -2 included? -1, sir. कर दिया. -2 included. पक्का? Yes, sir. हाँ, sir. एकदम पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लेते हैं। कम -1 भी होगा तो भी -1 -2 ही आएगा but ना? not included. -1 से थोड़ा सा कम तो भी -2 ही आएगा ना? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। If I -1.2 ले say गया तो minus
1.2. What is the answer? -2. -2. -2. पक्का ना? Yes. Yes, Sir. sir. Minus Yes, sir. 1.99. What is the answer? -2. -2. -2. पक्का? -2. अरे पक्का? Yes, Yes. sir. Sir. It's 1.0001 भी -2. So -2 का आंसर यहाँ पर -2 क्या करूँ मैं बोलो? -infinity to -1 but open interval. हाँ, अब आगे देखो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पता कर रहे हैं, x का वैल्यू पता कर रहे हैं. आप नंबर लाइन ठीक से देख लो तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए. दिस इज -1, दिस इज -2. अब प्रॉब्लम ये है हमारा स्टेप ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? -2 होना चाहिए. -2 उससे ज्यादा कम है कि नहीं? तो आपका जो x का वैल्यू यहां पर आप ठीक से देख लो, यहां से कोई भी अगर वैल्यू आएगा तो सीधा नीचे पीछे की तरफ जाएगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So can -2 come or not come? It will. -2 will come. It will come, na? Yes, Yes, sir. sir. So -2 आएगा. Do you agree? Yes, sir. Interval. Does that make sense? Yes. Yeah. If x is -1.2 पकड़ो तो भी -2 -2 आएगा. हाँ, -2 So, आएगा. so this will be -infinity to -1 open bracket ना? एक मिनट. Sir. Yes, sir. तो x की बात कर रहे हैं ना? Yeah, sir. We are finding the domain, na, not the range. Oh, yeah. Yes. We are finding the domain. एक मिनट. Yeah. हम लोग x की बात कर रहे हैं ना? एक मिनट. Yeah. तो आपका जो x का वैल्यू है किस? आपका जो x का वैल्यू है, अगर मैंने बोला -1.99 तो आंसर -2 आ रहा है. हाँ कि नहीं? Yes, yes. Yes, sir. तो अगर मैंने can I take x -2? Yes, sir. Yes, sir. If I can take x -2 then यहाँ पर -2 तो चलेगा ना? ये -2 में क्या प्रॉब्लम है? Why x cannot be -2? No, he's saying it. So Since now it's it minus will be one. says minus So 1.000. -1.2 you have We'll written give na you just -2 here. as the answer, and it's equal to -2 step x. What is saying? So, for example, now you take x as minus 1.000001, for हाँ. example, हाँ. and now uska step x लो, तो you'll get answers -2, and the function is less than or equal to -2. So हाँ. that is why it should be -infinity to -1, but not included. Oh yes. Because यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पता कर रहे हैं. हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं kids? हाँ, sir. तो यहाँ पर आपका जो x का वैल्यू है वो -1 तक जाएगा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Open interval. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ कि नहीं? हाँ, sir. क्योंकि -2 तो इससे छोटा है ना? Yes, sir. पक्का? हाँ, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स व्हाई -2 नहीं लिखना, क्योंकि -2 तो उससे छोटा है, तो आपको -1 तक जाना चाहिए. डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, कूल, वेरी गुड. हमारा ध्यान ही कुछ और था, कर रहे थे हम. ठीक है. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सिंस आई एम टेकिंग -1 तो -2 विल कम इनसाइड दिस ऑटोमेटिकली. इज इट ओके? Yes, sir. बट आई कैन नॉट टेक ऑन दिस साइड. इज इट ओके? Yes, sir. इज इट क्लियर किड्स? Yes, sir. Yes, अच्छी sir. बात है. या गुड. चलो, कैन आई गो अहेड? Yes, sir. Okay, next is 144. The question is find the domain of it. Okay, तो domain के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला term should be greater than equal to 0. This वाला term should be greater than or equal to 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. तो शुरू करें? Yes. Let's go ahead. तो आपका जो step of x -1 है should be greater than or equal to 0. Is it okay? Yes, sir. And a 4 minus step x should also be greater than or equal to 0. Is it okay? Yes. Yes, sir. अच्छी बात है. So I get here step of x is greater than or equal to 1. by the way, दूसरे बच्चों को समझाना इसके बारे में, नहीं तो लोग फिर कंफ्यूज होंगे. I explain again. Should I explain again? Yes, sir. Okay. See, आपको समझना पड़ेगा. हम क्या करें? अच्छा कि मैंने पूछ लिया, नहीं तो फिर लोग अपनी दुनिया में होते हैं. देखो, आपको समझना पड़ेगा. हम लोग को ना यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो दिया है ना, देखो मैं आपको ना
ठीक समझाते में तो काफी लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या बोला, आपका जो स्टेप एक्स का जो वैल्यू है ना वो -2 या उससे कम होना चाहिए, हाँ कि नहीं? Yes, पर sir. हमें क्या करना, हमें एक्स का वैल्यू पता करना है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके अब आप खुद सोचो, अगर आपका एक्स का वैल्यू, ओके पहली बात प्रॉब्लम यहाँ पर क्या रही है, लोग नेगेटिव वैल्यू पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखो ये आपका है 0, ये आपका -1, ये आपका -2, तो वो क्या बोले, आपका जो स्टेप एक्स का जो वैल्यू है ना, आपका जो स्टेप एक्स का वैल्यू -2 या उससे कम होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ये स्टेप एक्स का वैल्यू, हाँ कि नहीं? Yes, sir. ये किसका वैल्यू है? स्टेप एक्स का वैल्यू ना। अगर स्टेप एक्स वैल्यू -2 उससे कम होना चाहिए, तो आपका एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? आपका एक्स का वैल्यू एक्चुअली शुरू -1 तो नहीं, लेकिन -1 के बाद शुरू होगा। डोंट यू थिंक? Yes, sir. Yes, sir. Got it. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इसका स्टेप -2 है ना, समझा क्या हो रहा है? Yes, sir. तो आपका जो x का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? -∞ to -1। क्या सबको समझा? Yes, sir. ये x का वैल्यू, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. गुड, Yes, sir. या अच्छा वो पूछ लिया, नहीं तो फिर लोग फिर पूछते नहीं है। ठीक है, ओके। फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेप ऑफ x, इज इट ओके? Yes, sir. Yes. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, आपका जो स्टेप ऑफ x है वो किसके बीच में होना चाहिए? -∞ to 5, not including. नहीं Less than equal to है sir. इधर है X mod ग्रेटर इक्वल टू 1 ना, Ah, sir. एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना? हाँ सर. Yes, Ah, sir. yes, sir. अब बताओ x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 या 1 उससे to ज्यादा। 5, including 1, excluding 5. हाँ 1 to 5 इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 5, इज इट ओके? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर x 4.99 होगा तो भी आंसर 4 ही आएगा, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good, very nice. So let's go ahead. This is 145th question for you people. Again, I will speak. Inside the root cannot be negative. So I can say x minus step x has to be greater than 0. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Your x should be greater than step of x. Is it okay? Yes, sir. So what is x का value? Can you tell me what is x का value? कोई बता पाएगा? Real numbers except integers. अरे वंश यार, तू हीरो यार तू। All real numbers except integer। खुद ही चेक करो कि किसी को समझा नहीं तो। अगर x 7.3 होगा तो 7.3 ग्रेटर देन स्टेप ऑफ 7.3। 7.3 का स्टेप क्या होता है? 7। Isn't that true? हाँ कि नहीं? तो x का, लेकिन अगर इंटीजर लेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने 7 लिया तो स्टेप ऑफ 7, now step of 7 is what? 7। तो ये तो गलत हो गया ना। Yes, sir. तो यहां पर x क्या नहीं हो सकता? अरे बोलो ना, Integers. x कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर नहीं हो सकता। डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. गुड। 146। कम टू 146। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। Isn't that true? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? तो पहली sir. बार डिनोमिनेटर तो आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है। सो ये मैं बाजू में लिख के रखता हूं। आपका डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपको स्टेप एक्स मिलेगा e⁻⁴, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो स्टेप एक्स 1 हो गया। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है? 1 to 2, including 1, excluding 2. So at least from here I've got some answer. X belongs to, क्या नहीं हो सकता? देखो 1.2 का 1 से लेकर 2 चलेगा ऐसा? Yes, sir. अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। Do you agree? Yes, sir. This is not possible. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है। This is not possible because if any value if I put here, the denominator will become 0. आगे बात करते हैं। लॉग के अंदर जो टर्म दिख रहा है ना, लॉग के अंदर जो टर्म दिख रहा है वो टर्म आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनफैक्ट
ग्रेटर देन जीरो तो होगा, क्या होगा उन्हें, ग्रेटर देन जीरो तो होना चाहिए, लेकिन ये 1 था, 1 तो ठीक है. Greater than or equal to 2 also. हाँ, इज दिस ओके? Yes, sir. जीरो से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं हो सकता है ना, Yes, sir. ये 1 नहीं हो सकता, वो तुमने कंसिडर कर ही लिया यहाँ पर, हाँ क्या नहीं किड्स? हाँ सर. स्टेप ऑफ एक्स जीरो से ज्यादा, तो यहां से व्हाट आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम हियर, आई गेट द आंसर एज फ्रॉम हियर. Normally if a person does it, what he get the answer as, 1 can come है ना, from here he'll get 1 to Infinity. but we have to Not discard this included. part, right? You have to discard this part. Yes, okay? sir. So discard this part, discard ये part को discard कर दो, ये part को आप discard कर दो, तो आप भी बताओ आंसर क्या है फाइनली. Closed interval 2 till infinity. तो ये पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे, 1 to 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, 2 कैन कम, कैन 2 कैन कम, यस, एंड 2 या उससे ज्यादा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहली बात, अगर किसी को समझा नहीं तो देख लो, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं हो सकता, तो पहले जीरो करके देखा मैंने, तो क्या पता चला x 1 to 2 में अगर होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसको तो डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा. फिर मैंने देखा log ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से जो आंसर मिल रहा है वो 1 to infinity, बट ये पार्ट को मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो आई गॉट द आंसर फ्रॉम 2 to infinity. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. अरे ये तो यार कोई भी बच्चा दे सकता है. चलो पब्लिक आंसर बताओ इसका. टेल मी इसका आंसर क्या है, क्या है इसका आंसर? -1, 0 and 1. तीन ही वैल्यू होगा, -1, 0 and 1. डू यू एग्री? Yes, sir. क्योंकि आई थिंक सबको पता है आपका जो sin x है, sin x का वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन व्हाट टू व्हाट. -1 to -1 to 1. तो अगर ये एंड स्टेप ऑफ sin x will always split an integer, हाँ के नहीं? yes. Yes, sir. तो what integer can come out? Either -1 or 0 or 1. Yes, sir. Yes. Good. Let's see who can answer me this question. If anybody can answer me directly. If anybody can answer me directly. All positive integer. Infinity and -2 to minus infinity to -2. हाँ यार, ठीक से बोलो, कौन बोल रहा है? Means Anybody? -infinity to -2 union 1 to infinity. अरे अर्जुन पुतली, it will split an integer ना? Yeah, integers from So what I should write? The integers except 0 and -1. Yeah. Integers except 0 and -1. yes, sir. No, because -1 is not included हाँ. ना, so -1 से थोड़ा कम तो वो -2 चला जाएगा ना. ठीक है, देखते हैं. Let's see. Can you go ahead? Yes, sir. अच्छा. See, सबसे पहले आपको sec x के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? sec x का जो वैल्यू हो, क्या किसके बीच में होता है? -infinity to -1 -1 include union 1 to infinity. 1 to infinity. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. अगर हमने इसको स्टेप लगा दिया, तो अब सोचना है आंसर्स क्या क्या आएंगे. अगर स्टेप लगा दे तो आंसर -1 भी तो आएगा ना, Ah, yes, sir. Yeah, sir. 1 भी तो आएगा ना, Yes, sir. 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, तो क्या नहीं आएगा? 0. 0. Can I say all z, all integers will come, but बीच में 0 तो है नहीं, तो 0 cannot come. Is that true? Yes, sir. Yes, sir. I can say all integers except 0. 0. Does that make sense? Yes, sir. Sin inverse of x. इसके बारे में सोचो. Sin inverse of x, क्या लगता है, कोई बताएगा आंसर ओरली, अगर कोई बता सकता है? देखो sin inverse of x का वैल्यू किसके बीच में होता है हमेशा? -1 and 1. -1 -π/2 to π/2. कैसे लोग बैठे क्लास में यार, हाँ क्या नहीं? Ah, sir. x का वैल्यू इज -1 to x का वैल्यू इज एनी रियल नंबर, हाँ क्या नहीं? Ah, sir. Yes, sir.
बट साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई टू पाई बाई टू ना. हाँ सर. तो पाई इज 3.14 अपॉन 2. ये है माइनस 1.57. 1.57. -2. तो फ्रैक्शन तो उसका स्टेप एक्स क्या है? बताओ आंसर क्या है फाइनली? Minus -2 to 1. क्या आंसर आएगा? -2 can come. Do you agree? Yes, sir. -2 can come. Even -1 can come. 0 can come. Even 1 can come. 2 cannot come. Do you agree? yes, Yes. sir. Yes. That's it. ये आपका आंसर हो गया. और क्या? Does that make sense? Yes, sir. Yes, sir. So one sec. Done. ठीक है, ठीक है, ठीक है. कोई बताएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में? उसका वैल्यू किसके बीच में होता है? कॉट, सॉरी कॉट है ना, कॉट है ये कॉट. Minus infinity to infinity. नहीं रे. Cot 0 to pi. टेल मी कॉन्फिडेंटली क्या आंसर है? 0 to pi. 0 to pi. 0 to pi ओपन इंटरवल, राइट? Yes, sir. है ना. कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल आता है ना. हाँ सर. अरे इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so cos inverse, cot inverse and sec inverse, they are quite similar, right? Yes, sir. Cos inverse में आता है 0 to pi included, right? हाँ सर. Cot inverse में 0 to pi, but 0 and pi is excluded, right? Yes, sir. And sec inverse में 0 to pi included except pi by 2. हाँ के नहीं? I by Yes, 2 sir. not included, sir. हाँ, तो ये हो गया. अब तो इसका मतलब है 0 लेस देन cot inverse of x लेस देन 3.14. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. तो आप बता दो cot इनवर्स ऑफ x का फिर वैल्यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे मुझे यहाँ से? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा. इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. कूल. Sir. या वंश. Sir, in the previous question, how can 0 come since cot inverse of x is not equal to 0? cot इनवर्स ऑफ x. Cot inverse of x is not equal to 0. मतलब you can't have that as 0. तो 0 कैसे है? बट ये तो मेरा रेंज है ना, मैं रेंज ढूंढ रहा हूँ हाँ, ना, yes sir, yes sir, हाँ. है ना? या इज इट ओके किड्स? Yes sir. ओके, आई थिंक यहाँ पर शुरू कर लेते हैं अपन इसके बारे में. कहाँ गया? साइन इनवर्स ऑफ ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स इट विल बी बिटवीन -1 to 1. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. है ना, -1 to 1 के बीच में ही रहता है. इज इट ओके? Yes sir. तो अगर ये ट्रू है तो ऑफ कोर्स मुझे आगे की बात बताओ फिर. स्टेप है ना, ये जो स्टेप बंदा दिख रहा है वो -1 और 1 के बीच में है. तो आपके हिसाब से 2x² - 3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होना चाहिए? है ना, 1.9 भी 1 ही होता है ना? हाँ कि नहीं? हाँ, yes sir. Yes, sir. The same only. सेम. ए मारू क्या, बजाओ तेरे कान के नीचे. सेम आएगा. -1 to Less than 2, 2. but no, -1 Not included. included. Not including 2. yeah. आर्यन शाह ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. समझा गया? I was seeing the -1. That's all. होता है ऐसा होता है. इट्स ओके, नॉर्मल. इज इट ओके? बट बी केयरफुल. ठीक है. Yeah, yeah, sir. You add 3, so 2 less than equal to 2x² less than 5. Is it okay? Yes, sir. I will divide by 2, so I will get 5 by 2. Is it okay? Yes sir. Yes, sir. I get the answer. X belongs to what? -5 by root. -5 by 2 to 1 included union. Sorry, -1 and then 1 to under root of 5 by 2 5 by 2. excluding. Is it okay? Yes, sir. सबको समझा ना? Yes sir. चलो अच्छी बात है. So can you explain the second step? This part you saying? Yes. This part, Tanisha? Yes, sir. Yes. Yeah, cool. देखो तनिषा, यहाँ पर देखना आप.
हम ना देखो, अगर किसी ने आपको बोल दिया -1 लेस देन इक्वल टू स्टेप ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, और अगर मैंने आपको पूछा मुझे x के बारे में पता करना है, x के बारे में, तो आप थोड़ा सोचो, अगर x मेरा 1 होगा तो ये स्टेप ऑफ x 1 ही होता है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. बट अगर 1.2 होगा तो भी तो 1 ही होता है, Yes, sir. 1.3 होगा तो भी तो 1 ही होगा. Yes, sir. Got it. Got it. तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से ज्यादा कम होना चाहिए, हाँ कि नहीं? Yeah. इक्वल टू -1. इज इट ओके? Okay, sir. तो सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई किया मैंने. चलो, कैन आई गो अहेड? Yes, sir. चलो, टेल मी द आंसर ओरली. आई कैन नॉट, दिस इज नथिंग टू सॉल्व, नथिंग टू सॉल्व इन दिस. चलो, व्हाट इज द आंसर? अर्जुन पुतली will -1 नहीं, Chhaitish, very bad. Arjun Putli will pakka give me the answer. Arjun Putli, Yes, sir. what is the answer? Range. Minus. Sir, 0. So 0. There's only one value, 0. Why? Sir, Because because when you sin put of pi dn is pi- 0. Sin pi and Sin into of- integer. So Integer times. Oh, into pi. हाँ, yes. Integer times pi. हाँ क्या नहीं? Yeah. है ना? Step x is integer only ना? Yes, sir. And integer times pi. So sin of n pi, integer times pi will always be what? 0. तो असल में ये फंक्शन तो 0 ही है ना. It actually represents which axis? X axis. X हाँ? axis. X axis ना? Yes, sir. So this is x axis only. Is it okay? Yes. Good, very nice. आगे 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 झकास झकास प्रॉब्लम, तो आपका भी होगा झकास. चालू करूं? Yes, sir. चलो, पहले ना इसके अंदर वाले बंदे के बारे में बात करते हैं, फिर हम बाहर वाले. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है ना किड्स, मुझे आप ये बता दो, ये किसके बीच में होता है हमेशा? 0 to pi. 0 to पाई के. included. क्या एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. नेक्स्ट, जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू है वो किसके बीच में रहता है हमेशा? 0 to pi excluded. Not included. हाँ, वेरी गुड. तो इसका मतलब हो गया आपका जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू वो है, ये है 3.14 लिखता हूं मैं. अभी हमने क्या करेंगे, हम लोग स्टेप लेंगे, ठीक है? स्टेप भी लेंगे. सो अगर हम स्टेप लेंगे तो देखते हैं क्या होता है. तो कैन आई से स्टेप ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जो मुझे वैल्यू मिलेगा उसके वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं पता है? 0, 1, 2, 3. 1, 2 and 3. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, जो मुझे कॉट इनवर्स का जो स्टेप मिलेगा ना, उसका One or जो two. वैल्यू होगा वो क्या होगा, बता दो मुझे यहाँ से. 0. Same only, sir. 0 तो आएगा ही ना, 0 तो आएगा ही ना. 0 क्या है, आएगा कि नहीं आएगा? 0, 1, 2, 3 आएगा. Sir. चलेगा ना? So same. 3 won't. 3 will come. है ना? 3 will come ना. Yeah, got it. Now the question is how to go ahead. Kids, you see, this step plus this step is 0. This plus this will be 0. When will this plus this will be 0? Will this plus and plus will be When 0? both are 0. When both are When 0. both are 0. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Wow, cool. So this will only happen when both the individual terms are 0. Does that make sense? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? So actually आपका जो कॉस इन स्टेप ऑफ ये जो बंदा, इसको भी 0 होना पड़ेगा एंड इसको भी 0 होना पड़ेगा. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ मुझे, tell me, your cos inverse of x therefore should be between what to what? 0 and 1 excluding 1. 0 comes, but 1 will not come. Do you agree? Yes, sir. Similarly, your cot inverse of x, 0 comes,
but 1 does not come. Is it okay? Zero, Yes. how will it come? So 0. Definition of cot inverse. रुको ना, बोल रहा हूँ, रुको ना यार. हाँ. So यहाँ पर 0 comes, 1 cannot come, and यहाँ पर भी 0 comes but 1 cannot come. But normally let's get back to definition. Cot inverse कभी 0 होता है क्या? नहीं. तो don't you think हमें यहाँ पर change करना पड़ेगा इसको? Yes sir. तो यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं इसको, इसकी मदद लेके. तो हमें पता है जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ना, वो 0 तो हो ही नहीं सकता. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. वंस यू रीच ना, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ से x ढूंढना पड़ेगा, यहाँ से x ढूंढना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. इज इट ओके? एंड अब लेट्स स्टार्ट. आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो व्हाट cos inverse and cot inverse are decreasing function. Is that true? Yes sir. And now cos inverse एक decreasing function है. Is that true? Yes sir. तो हमें भूलना नहीं है. cos inverse भी decreasing है, और क्योंकि decreasing function है दोनों, इसके लिए जब मैं दोनों जगह पे cos अप्लाई करूंगा तो यहां पर आएगा cos of 0. Inequality will change. Cos inverse of x greater than cos of 1. Is it okay? Yes. यहां पर भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर आएगा cos of, अगेन cos, sorry, slip of pen. cos इनवर्स एंड cot इनवर्स दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पर आएगा cot of 0 ग्रेटर देन cot इनवर्स ऑफ x greater than cot 1. Is it okay, kids? Yes sir. तो यहाँ पर what is cos of 0? 1. Is it okay? Yes. The cos inverse of cos x will be x. Is it okay? Yes sir. And I get cos 1. Similarly, cot of 0. What is cot of 0? Cot of 0. Isn't that positive infinity? Yes sir. अगर आपको ग्राफ याद है तो आपको बता देता हूँ, cot का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. Is that true? Yes. अरे is it true? Yes sir. Yes, sir. And now the cot of 0 is towards positive infinity. जहां पर आएगा infinity greater than x greater than cot of 1. Is it okay? Yes sir. So I go to the next slide. Okay, so I'll write it down again properly. तो मुझे यहाँ से दो आंसर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना. This is less than equal to 1. Yeah. So less than equal to 1 और यहाँ पर आ गया cos of 1. Is it okay? Yes sir. Similarly, x less than infinity and less than cot of 1. Is it okay? Is it okay? Yes sir. अभी Yes, sir. एक धर्म संकट है. What is the धर्म संकट? What is the problem now I'm facing? I have to find दोनों का common solution, no? Yes sir. But the problem is I don't know whether cot 1 is greater or cos 1 is greater. हाँ क्या नहीं? Yes sir. तो चलो थोड़ा झोल करते हैं. Can I start? Yes sir. So can't you call cot of 1 like cos of 1 upon sin of 1? हाँ वही करने वाला मैं. I'll do that only. Yeah. So this will be greater. Less. है ना? Okay, चलो cool. Very nice, very nice. First of all मैं आपको बता देता हूँ, those who not understood. See, cot of 1 ना cos 1 से बड़ा होता है. कैसे बताता हूँ? See, cot of 1 is same as cos of 1 upon sin of 1. Do you agree? Yes sir. Now, sin of 1 is something 0 point something something something. Do you agree? Yes sir. So it will become very big, no? Yes. So can I say cot of 1 will be greater than cos of 1? Yes sir. Pakka, everyone. Yes sir. So from here I can tell you my cot of 1 will be greater than cos of 1. Is it okay? Yes sir. तो एक काम करते हैं. Let's draw this first. Okay, I want to find a common solution, by the way. Yeah. Okay, so I have now the problem is about 1. Cos of 1. Cos of 1 is less than 0, na kids? Of course. Yes, Sorry, sir. not less than 0. Sorry. Cos of 1 will be less than 1. हाँ क्या नहीं? Of course. So I'll draw cos of 1 and I'll put 1. And I'll draw some diagram so that यहाँ पर cos 1 does not come but 1 comes. Is it okay? So I've drawn this. Is it okay? Yes sir. अब मुझे ये ड्रॉ करना है. अब और एक कंफ्यूजन है. बताओ क्या कंफ्यूजन है मेरा अभी? cot 1 बड़ा है कि 1 बड़ा है वो मुझे नहीं पता. देखो cot 1 cos 1 से तो बड़ा है, हाँ कि नहीं? Yes. पर 1 से बड़ा है कि छोटा है वो मुझको नहीं पता. Yes. समझा मेरा प्रॉब्लम क्या है? डू यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? Yes sir.
अरे कोई खाली वंश ही बोल रहा है, सबको समझ रहा है प्रॉब्लम क्या है. I got this from 0 to 1. Is it okay, this part? So we don't know cot 1 is greater or less than 1. No? हाँ, so my problem is I don't know cot 1 is less than 1 or greater than 1. Are you understanding my problem? Yes. So let's clear this part by a diagram. Let's become confident. Okay, so I'll draw my graph of cot. Where diagram? This does not look good. So I'm gonna draw the diagram. Is it okay? Yes, sir. This is pi by 2. Do you agree? Yes, sir. Okay, next. अब pi by 2 का मतलब कितना होता है? 3.14, 1.57, हाँ कि नहीं? And pi by 4 will be somewhere here. And pi by 4 is less than 1, हाँ कि नहीं? Yes. So this is cot of pi by 4, this is cot of 1, हाँ कि नहीं? Do you understand? Yes. Okay, I'll just draw this properly. Okay, I think काफी बच्चों को छोटा डायग्राम दिख रहा होगा. मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ, तो आपको समझ जाएगा clearly क्या है. I'll draw it very big. Okay, चलो, I'll just draw it very big so that you all understand. देखो, अरे यार, ठीक है, समझ लो यार तुम लोग यार. बार बार नहीं करने वाला. Pi by 2, pi by 4 and 1. Is it okay, kids? Yes. Is 1 greater than pi by 4? Yes. Good. Now, so cot का ग्राफ है by the way. So this will be cot of 45. Cot 45 1, हाँ कि नहीं? 1, yes. Yes. Sir. This will be cot of 1, हाँ कि नहीं? Yes. Who is greater? Cot 1 के 1. Cot 1 के 1. 1 is greater than One is cot 1. 1 is greater than cot 1. Does it make sense now? Are everybody understood? Yes, sir. Okay. So finally, this part is from cot 1 से ज़्यादा. Cot 1 hollow circle. And उससे ज़्यादा. Is it okay? Or is it okay? Yes. So where is the common part? Where is the common part? Cot Cot 1 2. Of Excluding course, cot 1. excluding cot 1 and including 1. हाँ क्या नहीं? So finally, what is my x का value? Cot 1 will be excluded, but 1 will be included. Is it okay? Yes, sir. मस्त प्रॉब्लम है ना kids ये? Yes. Yes, अब sir. पूरा प्रॉब्लम देख लो कितना मेहनत लगा. पहले तो हमने देखा कि 0 0 होना चाहिए, फिर हमने cos इनवर्स के वैल्यू पता किए. अब इसमें धर्म संकट ये था, मुझे x तो फाइंड का, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने cos से डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमने cos अप्लाई कर दिया. अब प्रॉब्लम ये था कि मुझे पता नहीं है बड़ा कौन है छोटा कौन है. 1 बड़ा है, cos 1 बड़ा है कि cot 1 बड़ा है, 1 बड़ा है कि cot 1 बड़ा है. उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ा. Is it okay? Yes, sir. Okay, solve for this. ठीक है. Okay, ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है. जब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? We draw the graph of this, है ना kids? Yes. And then we draw the graph of this. हाँ कि नहीं kids? Yes, sir. And then we check where they intersect. हाँ कि नहीं? तो ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये बिना ड्राइंग के नहीं कर पाएंगे, हमको सॉल्व ड्रॉ ही करना पड़ेगा. ठीक है, एक्चुअली थोड़ा एक्यूरेटली बनाना पड़ता है. ठीक है, तो आई थिंक सॉरी या ओके. सो this goes like this. So hollow circle. चलेगा ना ऐसा? Yes. और इसको हमको ऐसा ड्रॉ करते रहना है. This will be 1, this will be 2, this will be 3, this will be
this will be 2, this will be 3, and this will be 4. Is it okay? Yes. -1, -2, -3 and -4. Similarly ये नीचे भी आएगा तो हम उसको नीचे भी करेंगे. Again this will be suppose -1, -2, -3. So again ऊपर suppose this is 1, 2 and 3. Okay, टाइम कंज्यूमिंग है बाय द वे. ठीक है, बट कर रहा हूँ तो करता हूँ. ठीक है, चलो. अगेन ये ऐसा आएगा और यहाँ पर हॉलो सर्कल. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. सिमिलरली ये ऐसा आएगा, यहाँ पर भी आएगा हॉलो सर्कल, यहाँ पर भी ऐसा आएगा, यहाँ पर आएगा हॉलो सर्कल. आई थिंक और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पर x² -3 है. x² -3 इज अ पैराबोला, राइट? Yes, sir. और उसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा? 0,3 3 units down. 3 यूनिट्स डाउन. तो पैराबोला ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा होगा तो 3 यूनिट्स डाउन. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके. और चेक करो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट होता है x एक्सिस पे. तो पुट y 0, Plus minus root 3. पुट y को 0, तो आपको x² मिलेगा 3. तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पर होगा? +-√3 पे, है ना? ओके. √3 का मतलब क्या होता है? 1.73. तो इट इज 1.73. तो ये 1.73 will be somewhere here. This will be √3 and somewhere here will be minus of √3. Is it okay? Yes, sir. Now kids, we have to be very much careful because ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं मिलेगा आपको. ये पैराबोला ऐसा बन रहा है, ठीक है? अब ये यहाँ से आएगा, ओके, यहाँ से जाएगा. रुको पहले मैं ड्रॉ कर, कौन सा कलर है ये? I'll just take the white color. चलो. ये पैराबोला. Now the problem is that we can have a doubt. Is it intersecting or it is passing through the hollow circle? Do you understand the problem? Yes, sir. तो ये चेक करना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? प्रॉब्लम है ये यहाँ से जो जा रहा है वो कहाँ, क्या इसको कट कर रहा है, क्या इसको कट कर रहा है, कि क्या कर रहा है? तो अपने को फिलहाल पता नहीं है. तो मैं इससे रफली ड्रॉ कर देता हूँ. जहाँ पर प्रोबेबल चांसेस है, या So we can put like values of y to get. अरे हाँ ना, कर रहा हूँ ना, अरे करता हूँ ना बाबा. हाँ. Okay, तो where are the probable chances? Let's talk about the probable chances. See, the probable chances of intersecting are what, you know? It can be this line, y equal to 3 can be one of the line, can be. Y equal to 2 can be the line. Do you agree? Yes. Y equal to 1 can be the line, and y equal to -2 can be the line, है ना? Yes. These are the probable lines where it can intersect. Do you agree? Yes. तो ठीक है, लेट्स ट्राई. जगह है क्या अपने पास? हाँ, जगह है. ओके, तो मैं क्वेश्चन वहां पर लिख रहा हूँ. क्वेश्चन है x² -3, ये आपका स्टेप x है. ये मेरा मेन क्वेश्चन है और मुझे देखना है मेरा पर यहाँ पर क्या प्रोबेबल लाइंस है. ओके, चलो मैं पहले y3 को ट्राई करते हैं. कैन आई ट्राई y3? Yes, sir. लेट्स ट्राई y3. तो मुझे क्या करना है? y3 मतलब क्या है? सॉरी, मुझे y को इक्वल टू 3 से इसको काम करवाना है. ठीक है, इंटरसेक्ट करवाना है y3 से. पैराबोला को y को 3 से इंटरसेक्ट करवाना है. पैराबोला को मुझे y को 3 से इंटरसेक्ट करवाना है. तो पैराबोला ये है मेरा और मुझे इसको y को 3 से इंटरसेक्ट करवाना है. चलो, तो y को 3 ले लेता हूं मैं. तो आई गेट 3 इक्वल टू x² -3. इज इट ओके? Yes. ओके. तो आपको x² क्या मिलेगा? 6. इज इट ओके? Yes. तो x will be, I will not write negative value, I'll write the positive √6. Is it okay? Yes. तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है? √6. √6 मतलब क्या होगा? 2 and 3 के बीच में, है ना? हाँ, sir. अब चेक करो 2 and 3 के बीच में पॉसिबल है क्या? देखो अगर 2 and 3 के बीच में होगा तो ये तो 2 हो जाएगा ना, हाँ, sir. जबकि ये तो 3 रहने वाला है. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Hey, do you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किस अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक कुछ लोग अगर समझ नहीं पड़ रहा है. आई एम ट्राइंग टू चेक whether this y equal to 3 will intersect with the parabola or not. Do you understand? Do you understand? Yes. Yes, sir. So I am trying to check whether y equal to 3 will intersect with the parabola or not. So what did I do was I equated the parabola with y equal to 3. That is y equal to 3. And I got x as √6. If x is √6, then the value will, right hand side will always be 2. हाँ क्या नहीं? हाँ, sir. Right side will be 2. Do you agree? Yes, sir. जबकि left hand side is 3. हाँ क्या नहीं? Yes. So not possible. Is it okay? Yes, sir. Let's try with the second case. सारे केसेस ट्राई करने पड़ेंगे रे बाबा.
नेक्स्ट इज y इक्वल 2 से इंटरसेक्ट करवाते हैं, y इक्वल 2 से इंटरसेक्ट करवाते हैं. So this is y equal to x square minus 3. Now let's intersect with y equal to 2. So if I intersect with y equal to 2, so I should get x square का value is 5. So x will be root of 5. Root of 5 is 2 point something, and 2 point something का step is 2. है ना? Right side 2 आ रहा है क्या नहीं? हाँ सर. Left side क्या आ रहा है? 2. अरे wow! Root 5 का square is 5. 5 minus 3 is 2. हाँ क्या नहीं? हाँ सर. So is left hand side equal to right hand side? Yes. So I got one of the solution. मतलब this parabola will cut y equal to 2. हाँ क्या नहीं? Yes. So I've got one of the solutions. One of the solutions which I've got here is this one. Do you agree? Yes sir. And this guy, as per my problem, was it has to be root 5. So x equal to root 5 is one of the solution. Do you agree? Yes. One of the, हाँ क्या नहीं? Similarly, let's try the third case. What is the third case? Y is 1. Okay, I'll use blue color. I'm taking third case. Third case क्या है? Y equal to 1. Okay. So let's intersect this guy with y equal to 1. So when I intersect this, I get 1 equal to x square minus 3. So x square equal to 4. So x becomes 2. Now if x is 2, then step of 2 is 2 here. So my RHS will be 2. Yes. What is my LHS? 1. LHS is 1. Not possible. हाँ क्या नहीं? तो not possible. हाँ क्या नहीं kids? Yes sir. इसका मतलब है डायग्राम जो दिख रहा है वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा. डू यू एग्री? Yes. नेक्स्ट. ओके, और क्या बाकी? और क्या है? x y equal to minus 2. minus 2. Now fourth part. Let's try the last part. Let's try कि whether this guy will intersect or not. That is which y equal to what? Minus 2. Minus. So let's try it out. So minus 2 equal to x square minus 3. So x square will be equal to 3 minus 2. So x square will be equal to 1. But this time it is on the left hand side. So I'll take a negative value. Say x equal to minus 1. हाँ क्या नहीं? Yes sir. Now when I take x equal to minus 1 का step will be 1. 1. Sorry, minus 1. Sorry, minus 1. Yes sir. Left hand side का step क्या रहा है? Left hand side का value क्या? Right hand side is minus 1. है ना? Yes sir. X is Yes, minus sir. 1. And left hand side is minus 1 का square Minus will be 2. 1. 1 minus 3 will be minus 2. So left hand side not equal to right hand side. Do you agree? Yes. Yes sir. Wow, मतलब हमें ये भी पता चल गया कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसको. आके नहीं? Yes. So finally, what is the solution? X is equals to root 5. Fantastic problem, ना kids? Yes sir. We got the answer by graph. ये ग्राफ के बिना नहीं कर सकते हैं ना kids? So this is the domain, ना? हाँ, एक ही वैल्यू इसका, एक ही वैल्यू. सॉल्यूशन है इसका. Oh, yeah. Did you understand? Yes sir. Beautiful problem made. Okay, तो फाइनली और क्या है? क्वेश्चन अभी क्या है? क्या पूछा उन्होंने? रेंज ऑफ दिस. ओ, उसके पहले तो मुझे फिर आपको एक नोट बताना पड़ेगा. एक मिनट. या. Okay, small note for you people so that you people don't forget. ये काम आएगा मुझे. Step of x plus step of minus x will always be 0 when x belongs to integer, will be 1 when x does not belong to integer. ये एक रिजल्ट आप लोग याद रख लो. दूसरा वाला step of x plus n will always be equal to step of x plus n where n belongs to integer. You can just prove it. We can just prove it few examples. चलो. X integer ले लेते हैं. I think ये clear है ना? Step of okay, x is 7. So step of 7 plus step of minus 7. What is step of 7? 7. What is step of minus 7? Minus. So answer will be 0. Is it true? Yes sir. Good. But if it is not an integer, then let's see what happens. So let me take some x का value as 7.2. ये minus 7.2. Now 7.2 का step is 7. Is it okay? Yes sir. What is minus 7.2? What is minus 7.2 का step? Minus 8. Oh, by mistake. इसका आंसर हो जाएगा -1. Is it okay? Yes. ये समझा क्या सबको? Yes sir. तो हमें याद रखना है. So you remember, integer है तो step of x plus step of minus x will be 0. Integer नहीं है तो -1. Is it okay, kids? Yes sir. अच्छी बात. Yes, sir. Let's go ahead आगे.
ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर टू, अगर आपका n इंटीजर है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर किसी ने बोला 2.3 प्लस 7, तो दिस इज एक्चुअली सेम एज 2.3 प्लस 7 ओनली ना किड्स, इजंट दैट ट्रू? Yes, sir. है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट्स द सेम थिंग, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मुझे काम आएगा कितना, तो ये देखते हैं कहाँ काम आएगा, देखते हैं। तो शुरुआत करें क्या अपन? Yes, sir. So look at the problem which is there in front of your eyes. Look at the problem which is there in front of your eyes. Okay. सबसे पहले, this is the question given to you, and they are asking you the range. See, first of all, is this an integer? Is this guy an integer? Yes, sir. पक्का ना? Step can I function will give an integer. So can I just say step of sin x plus step of cos x? Is it okay from here? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Now अगर x is between 0 to pi by 2, if x is between 0 to pi by 2, if x is between 0 to pi by 2, if x is between 0 to pi by 2, ये आपका हो गया sin x, सॉरी cos x, यानी आपका sin x। अगर x 0 और pi by 2 के बीच में है, तो आपका 0 और pi by 2 के बीच में बोला है, 0 और pi by 2 के बीच में, तो आपका step x का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा ना हमेशा। अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. अरे 0 और pi by 2 के बीच yes. में, अरे ओपन इंटरवल है, हाँ कि नहीं? हाँ, sir. और इसका भी दोनों आंसर के क्या लिए। होगा? Yeah, 0। for Zero. both. तो आंसर क्या हो गया? 0. पब्लिक को समझा गया? Yes, sir. अच्छी बात है, समझना ही पड़ेगा तुम दोनों लोग पे को। one value range. Is it okay? But if it would be pi by 2 included, then we would have cases. हाँ, फिर तो प्रॉब्लम हो जाता ना, है ना? तो आगे बढ़ना पड़ता है फिर, तो कैसे? दो वैल्यू आता है। हाँ, कैसे लेना पड़ता है? यहाँ Is it okay? Yeah. So if it was pi by 2 included, तो cos x would become 0 any which way. हाँ, Only वो तो sin 0 x will become 1 ना, so हाँ, yes. 1 and 0 है। 1 and 0 would be 2 1. हाँ, आपको और एक 1 भी आ जाता ना यहाँ से, Yes sir. ठीक है? Yes. Yeah. चलो, तो 0 भी include करते तो भी 1 and 0 ही आता। yes. Is it okay? Yes. चलो, अच्छी बात है। Can I go ahead? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है। So kids, let's go with 156. Again, I think ये तो अभी डिस्कस किया मैंने, तो सिमिलर कैटेगरी है। Is this an integer? Yes. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? या बाहर आ जाए, यहाँ पर आएगा स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ x। इज इट ओके? Yes, sir. है ना, ये बाहर आएगा ना, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। डू यू एग्री? Yes, sir. 3 times step of x. हाँ सर। वापस से दिस इज x प्लस ट्वाइस ऑफ स्टेप x। अगेन, इज दिस एन इंटीजर? Yes, sir. Yes sir. कम आउट। इज इट ओके? Yes, sir. यहाँ पर आएगा थ्राइस ऑफ स्टेप x। इज इट ओके? ओके, यहाँ पर खाली इसको पहले सिंप्लीफाई करना था। दिस क्वेश्चन ओनली सिंप्लीफाई, क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफाई, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। इज इट क्लियर? Yes. चलो, अच्छी बात है। सो वी हैव रीच्ड हियर नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। ये भी शायद सबको मैंने सिखाया है, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ के नहीं? हाँ, sir. अरे पता है कि नहीं पता है? पता है ना, sir. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इज इट इज नॉर्मली गिवन एज x माइनस स्टेप x। इज दैट ट्रू? Yes, sir. है ना? सो हियर x कैन बी एनी रियल नंबर। इज इट ओके? Yes, sir. बट आप देख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 विल बी व्हाट? 2.3 माइनस स्टेप ऑफ 2.3, हाँ के नहीं? Yes, sir. Step of 2.3 is 2. So I get 2.3 minus 2. What is 2.3 minus 2? 0.3. हाँ के नहीं? हाँ, sir. Similarly 7.9 का आंसर आएगा 0.9. 3.6 का आंसर आएगा 0.6. हाँ के नहीं? Yes.
अगर -2.3 तो -2.3 minus step of -2.3. Now step of -2.3 is -3, so I get the answer 0.7. Is it okay? Yes. तो यहां से आंसर आया 0.7. नेगेटिव होगा यहाँ पर आएगा 0.1. हाँ क्या नहीं? नेगेटिव Yes. 3.6 तो 0.4. Is it okay? Yes. लेकिन अगर इंटीजर होगा तो आंसर 0 आएगा. Is that true? Yes. इंटीजर तो आंसर 0 आएगा. Is that true? Yes. इसका मतलब रेंज क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या हो गया? 0 to 1. 0 to 1, Including 0 but Excluding. excluding 1. excluding 1. And I think everybody remembers the lollipop curve. Yes. तो भूलना मत, ठीक है? Answer. चलो अच्छी बात है. Okay. Tell me the answer. Step of x is 0, then what is x का value? Any integer. है ना? x can be integer. Do you agree? Yes. कोई भी इंटीजर लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही आने वाला. Is that true? Yes. Tell me the x का value. x का value 0.3, 1.3, 2.3. है ना? 0.3, 1.3, 2.3 जो भी. तो can I say it will be integer plus 0.3? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर 1.3 लूंगा तो 0.3 आएगा, 1.4 लूंगा तो 0.4 आएगा. Is it okay? -1 लिया तो 0.7 आएगा, उसके लिए भी 0.3 है. हाँ, सही बात है कि नहीं आर्यन शाह? Yes, sir. सही है रे. ओके, अब बताओ रे, बताओ. यहां पर उन्होंने बोला है, क्या पूछा उन्होंने? हाँ, उन्होंने पूछा x का वैल्यू पूछा. x का वैल्यू क्या है? और द डोमेन एंड रेंज भी पूछा. Anything other than integers. Yeah. एनीथिंग अदर देन इंटीजर. परफेक्ट. ओके, चलो मैं बता देता हूं. पहली बात, उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा x क्या हो सकता है. देखो, x इंटीजर नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते इंटीजर? Log 0. हाँ, अगर इंटीजर लेगा तो 0 हो जाए. तो यहां पर आपका डोमेन क्या होगा? डोमेन विल बी all real numbers except integer. चलेगा? Yes, sir. देखो, फ्रैक्शनल पार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से ज्यादा ही होना चाहिए. हाँ क्या नहीं? Yes. हाँ सर. तो नेगेटिव का तो टेंशन नहीं है, और जहां तक 0 का टेंशन था वो इंटीजर ने हटा दिया. हाँ क्या नहीं? Yes. Sir, हाँ बोल. log of negative. लॉग ऑफ नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव विल नॉट हैपन. आपने डोमेन R ले लिया ना. अरे x कैन बी एनी रियल नंबर ना. But fractional part won't let it be na negative. फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होगा ना? बराबर बात है. Yes, sir. Correct. अच्छी बात है. अब रेंज की बात करेंगे. लेट्स टॉक Minus infinity to 0. Not included. अरे वाह, -infinity 0 not included. हाँ, 0 is not included, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो I'll explain you so that you understand. See, first of all, for this particular problem, your fractional part का जो value है ना, it has to be between 0 to 1, and 0 cannot come this time. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. If I apply the base e, okay, base e, inequality will not change. Do you agree? Yes. Because e is more than 1. E is more than 1. Now, log of 0 is negative infinity. Is it okay? Yes, sir. And your log of 1 will be 0. So what is the range here I've got? -infinity to 0. Is it okay? Yes. Understood na everyone? Yes. Find the range and I'm gonna the... go back one sec. Yeah. Sir? Yeah. बोलो. No. कुछ नहीं. ठीक है ना? Yeah, yes, sir. Done, sir. Find the range and the domain of sin inverse of f of x. Sorry, sin inverse of x. अच्छी बात है. मैंने सोचा था काफी खत्म करूंगा, लेकिन ये तो ठीक है. 40 समय हुए ना? ठीक है. क्या Sin inverse of fractional okay, part. fractional part. Yeah, fractional part. Yeah. Okay, चलो बताओ. सबसे पहली बात, आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट, आपका यहाँ पे पूछा डोमेन. डोमेन क्या होगा? व्हाट कैन बी एक्स? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स. व्हाट इज द प्रॉब्लम? है ना? Yes, sir. एक्स कुछ भी हो सकता है रे बाबा. एक्स कैन बी एनीथिंग. डू यू एग्री? Yes, sir. वेरी नाइस.
अब रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात हम करेंगे। आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, समझा? हाँ Yes, sir. Sin inverse is an increasing function, so it should never have a problem with the inequality sign. Is it okay? Yes, sir. So I think we have got the answer here. So sin inverse of 0 will be 0. Is it okay? Yes, sir. yes sir. And what is sin inverse of 1? Pi by 2. Pi by 2. Answer is 0 0 to included, pi by 2. 0 to pi by 2 Excluding pi. included. not including. Is it okay? Yes sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन तो सबको पता है ना, हाँ, sir. है ना? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तो सबको पता है। चलो डिफाइन में मैं पहले एक काम करता हूं, मैं सिग्नम फंक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, फिर सिग्नम ऑफ sin x ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो लेट्स सी द नोट। ओके, सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x, which everybody knows. Signum of x is normally given as x upon mod x ना, या mod x upon x, हाँ कि नहीं kids? Yes. और signum of x का normally आंसर क्या होता है? It is -1, 0, 1. when x is positive, when this is -1, when x is negative, and it is 0 when x is 0. Is that true? Yes, sir. पक्का ना? Yes sir. In fact, मैं ये भी आपको बता देता हूँ so that you remember it. This is the first thing. Okay. Of course, what if suppose you get something like this? I get a question. Signum of some function. So signum of some function will be 1 when that function is positive. चलेगा? Yes. It will be -1 when that function is negative. And signum will be 0 when that function is 0. Does that make sense, kids? Yes. तो चलो अभी signum of sin x ड्रॉ करते हैं। तो let's draw signum of sin x. So signum of sin x. Now signum of sin x will be 1 when sin x is positive, -1 when sin x is negative, and will be 0 when sin x is 0. Is that true, kids? Yes. ओके, मैं सिग्नम का फिर ग्राफ बना के बता देता हूँ। मैंने ग्राफ बनाया नहीं, ओह मैंने स्लाइड के लिए जगह भी नहीं रखा है, ठीक है? चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले सिग्नम का ग्राफ, ये इसका ग्राफ में बना के बताता हूँ, ठीक है? तो इसका ग्राफ आपको शायद पता ही है, फिर ये बना देता हूँ। आई थिंक इतना हमने किया है ना सिग्नम फिग्नम, तो ये तो एक्सपेक्ट करता है हर बंदा कि बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, अगर सिग्नम ऑफ 0 is 0, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? Yes. अगर पॉजिटिव होगा तो सिग्नम विल बी 1. इज दैट ट्रू? अगर x नेगेटिव है तो सिग्नम विल बी -1. इज इट ओके किड्स? Yes. अब हमारा फोकस ये है, तो हम क्या करेंगे, पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं और जहां पॉजिटिव है तो वहां पर 1 ड्रॉ करेंगे, जहां पर नेगेटिव वहां पर -1 ड्रॉ करेंगे। इज इट ओके? Yes. हमने ये भी किया है ना, हमने ड्रॉ किया है ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी, ठीक है? तो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस. So just let me draw the graph of sin x. Is it okay? Yes. ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, और भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो, so this is 1, this is -1. Let's start. Okay, this part will be the graph. Okay, जहां पर साइन पॉजिटिव वहां पर आंसर क्या होना चाहिए? 1. जहां साइन x 0 वहां पर आंसर 0 है, तो बेसिकली ये आंसर 0 होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यहाँ पर आंसर 0 ही होगा। जहां पर साइन x 0 है वहां पर सिग्नम ऑफ साइन x 0 होगा। इज इट ओके? Yes, sir. ना नेक्स्ट, जहां पर आपका साइन x पॉजिटिव है वहां पर आंसर आपको मिलना चाहिए 1. डू यू एग्री? Yes, sir. जहां पर नेगेटिव है वहां पर आपको आंसर क्या आना चाहिए? -1. ओ सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। 1 तो मेरा ऊपर हो गया ना, एक मिनट, माय मिस्टेक। उसको थोड़ा हम लोग नीचे ले लेते हैं ना, जिससे वो उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक मिनट, टच करना चाहिए, आई मीन टू से। ओके, तो इसको 1 बोल देता हूँ मैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा, वो उसको ऐसा टच करेगा। इज इट ओके?
यहाँ पर भी हॉलो सर्कल आएगा, वो उसको ऐसा टच करेगा. इज इट ओके? Yes, sir. सिमिलरली ये इसको टच करना चाहिए. इज इट ओके किड्स? टच करेगा. अगर ये नेगेटिव है तो उसको टच करना चाहिए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग किड्स. Yes. ओके, तो ये जो ब्लू में जो दिख रहा है वो सिग्नम ऑफ साइन एक्स. इज इट क्लियर? Yes. गुड. ओके, और बस 2-3 और ग्राफ. टाइम क्या हुआ? 850. बस रुको. और ये दो ये खत्म कर लेते हैं. वी कैन जस्ट स्टॉप देन. 160 या ठीक है. सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर पहले कर लेते हैं ना. सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये भी. 60 हाँ ये भी खत्म कर लेंगे. चलो पहले आई थिंक वी नो द डेफिनेशन राइट. Yes, sir. सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1 व्हेन एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. हाँ कि नहीं? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है. सिग्नम एक्स स्क्वायर विल बी -1 एक्स स्क्वायर नेगेटिव. कैन एक्स स्क्वायर बी नेगेटिव? No. No, sir. है ना. -1 में, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये वाला केस. Yes, sir. तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा. एंड और एक है, वो है इट इज 0 व्हेन एक्स स्क्वायर इज 0. इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर तो सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं एक्स स्क्वायर. ये सब आपका रिवीजन है, रिवीजन जैसे ही हो गया. एक्स स्क्वायर लुक्स लाइक दिस. इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो 0 पे तो आंसर 0 आएगा. ठीक है, मैं इसको 1 करके रखता हूँ. ओके. अगर पैराबोला, अभी यहाँ पर देखो क्या सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा फॉर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा 1 ही होगा ना एक्सेप्ट 0. Yes, sir. तो ये पॉजिटिव है तो ये आंसर हमेशा 1 होगा. इज दैट ट्रू? Yes, sir. और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आंसर हमेशा 1 ही होगा. इज दैट ट्रू? Yes, sir. So the white part that you see is the graph of signum of x square. Is that true? Yes. तो जहां पॉजिटिव है वहां पर 1 होगा हमेशा. Is that true? Yes, sir. Similarly, let's try signum of x cube. Now signum x cube will be 1 when x cube is greater than 0, -1 when x cube is less than 0. See, we can draw this graphs now directly. तो इतना मेहनत करने के बाद तो पता चल ही जाता है. Okay, चलो. Okay, do we know x cube का ग्राफ? Yes, sir. है ना. x cube का ग्राफ जो है ना, it looks like this. Is it okay? Yes, sir. So 0 पे 0 है. अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका 1 होगा. Is that true? Yes, sir. और नेगेटिव पे आपका ग्राफ हो जाएगा -1. Is it okay? Yes, sir. चलो similarly let's do the last sum of the day, then we can just go next time. Okay, yeah. आगे बात करते हैं. Log of x to base 2. Can I do it directly now this time? Yes. Yes, sir. Can I do it directly? Yes, sir. जहां पॉजिटिव है वहां पर 1 करने का. और क्या. Log of x to base 2 कैसे दिखता है हम सबको पता है. It looks like this. Is it okay? Yes, sir. I think now we know. Okay. 0 पे 0 हाँ के नहीं? Yes, sir. Okay, इसको मैं 1 बोल के रखता हूँ और इसको मैं बोल के रखता हूँ -1. ओके. 1 अगर ये पॉजिटिव तो ग्राफ 1 ही होगा हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे चलता जाएगा. और अगर ये नेगेटिव है तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आएगा. डू यू एग्री? Yes. पक्का ना? Yes, sir. अगर वो ग्राफ नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड की तरफ आएगा. समथिंग लाइक दिस. Both hollow circles. हॉलो सर्कल्स. इज इट ओके? Yes, sir. ये हमने ड्रॉ कर दिया. आई होप सबको सिग्नम में समझ गया है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मैक्स मिन फंक्शन देखेंगे और फिर वापस इनटू ऑन टू पे जाना पड़ेगा. आई वांट यू ऑल नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तो आपको इनटू वन टू सब याद होना चाहिए. 1 to 1 इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव सिखाया था ना मैंने. हाँ, sir. ये सारी चीजें हमको काम आने वाली है नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो आई थिंक इतना हमारे लिए आज के लिए काफी है. बच्चा कुछ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके, चलो एक मिनट.